Starting with binomial distribution, one of the simple chapter. Dichotomous means in nature means either the answer is head, tail. Only two answers are there. One is pass, another is fail. One is success, another is failure. Okay. So if there are only two results, example when a coin is tossed, either head or you get tail. Okay, if you're going to throw a dice, either if the event is about even numbers, so either you get even numbers or you don't get an even number. Okay, so that is success and failure. Whenever there are only two results, it is called as dichotomous. Okay, Bernoulli's trial for independent events. But before that, what do you mean by trial? If I'm going to toss a coin, that tossing a coin is called as a trial. If I'm going to toss four such coins, if I'm going to toss four such coins, it is called as four trials. Okay, independent events का मतलब when one event does not depend on the other event. Example के लिए if the cards are drawn, if I am drawing first card, then there are 52 sample space. If I am drawing second card after the first card, then the sample space is 51. Why? Because it depends on the first try. फर्स्ट टाइम मैंने कार्ड ड्रॉ किया 52 कार्ड्स था. सेकेंड टाइम जब मैंने कार्ड ड्रॉ किया तो एक कार्ड ऑलरेडी निकल गया, यानी सैम्पल स्पेस कम हो गया. सो दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, इंडिपेंडेंट यानी मैंने फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया, उसका रिजल्ट देखा, वापस अंदर रखा, रिप्लेस्ड, I am going to put it back and then I am going to draw the second card. That is called as independent event. So Bernoulli's trials are applied for independent events. Such independent events which has only two outcomes यानी there will be either a failure or a success is called as Bernoulli's trials. Okay, for Bernoulli's trials we are going to learn a formula, that is probability of x is equal to x is given by x मतलब जिसका probability हमको ढूंढना है. Okay, is given by NCX p raised to x q raised to n minus x, where n signifies the number of trials, x signifies जितने बार तुमको head या tail चाहिए, p signifies the success, q signifies the failure. Okay, so this is a binomial. This formula is called as Bernoulli's trials. Okay, but this is within the topic called as binomial distribution. The sums are quite simple in this. You have to only concentrate on two things. Okay, now the binomial distribution with n Bernoulli's trials and probability of success in each trial as p is denoted by b. B signifies Bernoulli's, n signifies the number of trials, p signifies the success. So you are going to represent it x implies b n p. This is the method of writing. Either you write this way or you write this way. Okay, Bernoulli's trials. Okay, now let's take up a sum. It's a most simple chapter, तुमको बहुत easily समझ में आ जाएगा. A die is thrown 6 times. If you notice it, we are throwing the die 6 times. यानी एक die means 1 trial. 6 times we are throwing यानी 6 trials. And 6 times जब मैंने try throw किया है, that is independent event. So I can say it to be Bernoulli's trials. Okay. If getting an odd number is a success, तो मेरा success is an odd number. Find the probability of 5 success, at least 5 success, at most 5 success. Okay, now to solve this, first a die is thrown 6 times. Okay, so how will I start over here? In this, the first sum, since throwing a die is independent event, therefore it's Bernoulli's trials. Okay, now for this, to apply the formula, I should be knowing two things. Which are the two things I should know? N and p, where n signifies the number of trials, p signifies the success. तो यहाँ पे मेरे को n क्या पता था? There are 6 times. The die is thrown 6 times. है, एक टाइम ड्राई थ्रो किया तो एक ट्रायल, 6 टाइम्स थ्रो किया तो 6 ट्रायल. तो n का वैल्यू भी 6, p का वैल्यू इज एन ऑड नंबर. व्हेन आई थ्रो अ डाई में तुम्हारा सैम्पल स्पेस क्या आता है? सैम्पल स्पेस फॉर अ डाई इज 1 2 3 4 5 6. ओके, तुम्हारा सैम्पल स्पेस 6 होता है ना, तो उसके अंदर ऑड नंबर्स कितनी बार आ रहा है? 1 3 5, यानी p सिग्निफाइज सक्सेस. तो सक्सेस कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है आउट ऑफ 6 आउटकम्स, यानी सक्सेस का वैल्यू क्या है? 1/2. तो फेलियर क्या रहेगा? तो फेलियर कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 माइनस p, 1 माइनस हाफ, यानी हाफ. अगर 3/6 सक्सेस है तो रिमेनिंग 3/6 फेलियर रहेगा, तो वैसे नहीं ढूंढने का.
सक्सेस और फेलियर बर्नौली स्टाइल्स वाले में यही तरीका यूज करना है। तुमने सक्सेस ढूंढ लिया ना, तो फेलियर का तरीका क्या रहेगा, 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस हाफ, दैट बिकम्स हाफ। तो तुमको n का वैल्यू मिल गया 6 और p का वैल्यू मिल गया हाफ। ओके, q भी तुमने ढूंढ लिया। ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, आई वांट 5 सक्सेस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 सक्सेस। 5 सक्सेस यानी p ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला, एन सी, सी यानी कॉम्बिनेशन, x p सक्सेस रेज टू x, q फेलियर रेज टू n माइनस x। सो मेरे को 5 के लिए चाहिए, तो x का वैल्यू 5 आएगा, n का वैल्यू 6 है, p का वैल्यू हाफ है, यानी क्या आएगा 6 c 5, p यानी हाफ रेज टू 5, q यानी हाफ रेज टू 5, हाफ रेज टू n माइनस x यानी n माइनस 5, 6c5 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। नाउ कॉम्बिनेशन में तुमने स्टडी किया था, NCR इज ऑल्सो रिटन एज NCn माइनस r, यानी NC5 कैन बी रिटन एज NC6 माइनस 5 यानी 1। ठीक है, दिस इज हाफ रेज टू 5 एंड हाफ रेज टू 1 विल एक्चुअली बिकम हाफ रेज टू 6। नाउ व्हाट इज 6c1, 6c1 इज 6, 6c1 का मतलब 6 आ गया अपॉन 2 रेज टू 6, 6c1 यानी 6, 6c1 यानी 6 आया, 1/2 रेज टू 6 यानी 6 अपॉन 2 रेज टू 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 2 रेज टू 5, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 रेज टू 5। दिस इज योर आंसर बिहाइंड। नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू एटलीस्ट 5 सक्सेस। नाउ एटलीस्ट 5 सक्सेस का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, 5 या मोर देन 5, यानी x इज इक्वल टू 5 या मोर देन 5। ठीक है, 6 या मोर देन 5, और मोर देन 5 यानी 7 नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने दिस डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स था, तो 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होता है, 5 या मोर देन 5, यानी 5 आएगा और 6 आएगा। ओके, 5 का अभी हमने किया था, वैसा ही सोल्यूशन करना है। 6c5 हाफ रेज टू 5, सक्सेस रेज टू 5, फेलियर रेज टू 6 माइनस 5, प्लस 6 के लिए कैसे आएगा, 6c6 हाफ रेज टू 6, सक्सेस रेज टू 6, सक्सेस रेज टू x आता है, फेलियर रेज टू n माइनस 6 यानी 6 माइनस 6 यानी 0, 65 यानी 65 अभी किया था अपन ने, 65 यानी 61 होता है, यानी आंसर इज 6, हाफ रेज टू 5 और हाफ रेज टू 1 यानी हाफ रेज टू 6, प्लस 66 यानी 1, हाफ रेज टू 6, हाफ रेज टू 0 यानी 1 होता है। दोनों में से हाफ रेज टू 6 इज कॉमन, बचा 6 प्लस 1 यानी बचेगा क्या 7, 7 अपॉन 2 रेज टू 6। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन उसी का, एट मोस्ट 5 सक्सेस। नाउ एटलीस्ट का मतलब क्या था, एटलीस्ट का मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 5। ठीक है, एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, एट मोस्ट वर्ड का मीनिंग होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 सक्सेस यानी लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। नाउ दिस इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, दिस कैन नॉट बी डन। ओके, तो ये वाला तरीका नहीं यूज करेंगे, तो कौन सा तरीका यूज करते हैं, एट सी मैक्सिमम 1 ही आएगा ना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू इज 1, एट मोस्ट 5 सक्सेस का मीनिंग हो गया मैक्सिमम 5, उससे कम चलेगा। ठीक है, तो द अदर मेथड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सच बिग वैल्यूज आई विल बी राइटिंग, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 में से आई विल रिमूव द प्रोबेबिलिटीज विच इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड ओवर हियर। लेस देन इक्वल टू 5 के अलावा क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 के अलावा क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1,
जो प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए ना वो निकाल दो, तो बचा हुआ जो चाहिए वो ही आएगा, यानी 0 से लेके 5 आएगा, यानी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 अभी अपन ने यहाँ पे ढूंढा था, रिमेंबर, ठीक है, वही वैल्यू आएगा, यानी 6 से 6, सक्सेस रेज टू 6, फेलियर रेज टू 6 माइनस 6 यानी 0, 1 माइनस 6 से 6 यानी 1, 1/2 रेज टू 6, 1 माइनस 2 रेज टू 6, 2 रेज टू 6 यानी 64, 64 minus 1 will become 63 upon 64. Okay, now that's your answer. Now let's come to the second sum. A pair of dice thrown 4 times. ठीक है, so यहाँ पे a dice thrown 1 time is 1 try. This is pair of dice thrown 4 times is your 4 trials. यानी in second sum n का value is 4. If getting doublet is considered a success, getting doublet is considered a success. By the way, we are not throwing 1 die, we are throwing 2 dice. 2 dice. जब हम लोग 2 डाई फेंक रहे, डाइस यानी समझते हैं ना, लूडो का डाई ना, उसके अंदर सैम्पल स्पेस में 1 1 से लेके 6 6 आता है, राइट। नाउ डबलेट का मीनिंग क्या होता है, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, these are called as doublets. Okay, so if getting a doublet is considered a success, तो मेरा सक्सेस का रोल कौन प्ले कर रहा है, डबलेट, ठीक है, और वो डबलेट कितने बार आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 बार ही आ रहा है, यानी मेरा सक्सेस 6 टाइम्स आ रहा है आउट ऑफ 36, ये मेरा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हो गया, दैट इज 1/6। तो मेरा फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 1/6, यानी क्या आएगा, 1 minus 1/6 यानी 5/6. Okay, that is my failure. So we have found out success, we have found out failure for doublet. Find the probability of 2 success. तो मेरे को probability किसका find out करना है, of 2 success. Okay, now पहले फॉर्मूला लिखते हैं, NCX P raised to X Q raised to N minus X. मेरे को सिर्फ 2 सक्सेस चाहिए, N का वैल्यू मैंने 4 बार ये डबलेट फेंका, C मेरे को 2 बार सक्सेस चाहिए था, 2 बार चाहिए था, P सक्सेस का वैल्यू इज 1/6, 1/6 रेज टू 2, X का वैल्यू, Q 5/6 रेज टू N माइनस X, N माइनस X यानी 4 माइनस 2, 4C2 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, नीचे 2 लिखा है यानी 4 × 3/2 × 1, 1/6 raised to 2, 5 raised to 2/6 raised to 2. This becomes 2 × 3 × 5 square upon 6 raised to 4. Okay. 6 raised to 4 में से एक 6 और ये एक 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 क्यूब हो जाएगा, 5 स्क्वायर यानी 25, 6 क्यूब यानी 216. So that becomes your probability. Okay. अब सब सम्स में यही मेथड अप्लाई करना है, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू डू द सम्स, ठीक है, रेस्ट यू कैन डू इट। देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स, तो डिफेक्टिव आइटम्स बिकम्स माई सक्सेस। अब सक्सेस कौन है, ये मेरा डिफेक्टिव आइटम सक्सेस है या नॉन डिफेक्टिव आइटम सक्सेस है, वो तुम्हारे फाइंड पे डिपेंड है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव का ही क्वेश्चन है ना, तो मेरे डिफेक्टिव को ही सक्सेस लेना है, ठीक है। सो इन योर थर्ड सम देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स, 5% डिफेक्टिव आइटम्स को मैं सक्सेस ले रहा हूँ, यानी 5/100 बिकम्स द प्रोबेबिलिटी, 5% है यानी 1/20 इज सक्सेस। तो Q का वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/20, 1 माइनस 1/20 का मतलब 19/20, दैट बिकम्स फेलियर। सो तुमने सक्सेस फेलियर दोनों ढूंढा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स, अभी हमने 10 आइटम्स को चूज किया है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, नॉट मोर देन 1, ये नॉट मोर देन वर्ड पे ध्यान देना, नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं चलेगा, एक से कम रहेगा चलेगा, ठीक है, यानी इसी का और एक मीनिंग आता है एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 1, ठीक है।
तो एटमोस्ट वन के लिए मैं प्रोबेबिलिटी कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट यानी मैक्सिमम वन, उससे कम रहेगा चलेगा, यानी 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, ठीक है। एटमोस्ट वन, मैक्सिमम वन, नॉट मोर देन वन, 1 से ज़्यादा नहीं चलेगा पर 1 चलेगा, 1 से कम भी चलेगा। सो दैट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, n का वैल्यू इज 10, c 0 के लिए लिख रहा हूँ, p सक्सेस 1/20 रेज टू 0, फेलियर 19/20 रेज टू n माइनस x यानी 10 माइनस 0 यानी 10 प्लस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए nc1 1/20 रेज टू 1 19/20 रेज टू n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी 9। अब 10c0 का आंसर 1 होता है, 10c1 का आंसर 10 होता है। दोनों में तुम क्या कॉमन देख रहे हो, ये 19/20 रेज टू 9 है और ये 19 रेज टू 10 है, तो कॉमन निकालते हैं, तो 19 रेज टू 9 कॉमन आएगा। ये 19 रेज टू 10 और 19 रेज टू 9 में से 19 रेज टू 9 कॉमन आया, 20 रेज टू 10 और 20 रेज टू 10 ही हो गया, 20 रेज टू 9 है और 20 है यानी 20 रेज टू 10 हो गया, तो 20 रेज टू 10 इज कॉमन। अब बचा क्या जरा देखते हैं, यहाँ पे तुम्हारा 1 बचा है, 10c0 यानी 1, ये भी एनीथिंग रेज टू 0 यानी 1 होता है, प्लस 10c1 यानी 10 होता है। तो क्या आंसर आता है 1 प्लस 10 का, 1 प्लस 10 विल बिकम 11 इंटू 19 रेज टू 9 अपॉन 20 रेज टू 10। एक मिनट, 19 रेज टू, दिस इज 10, दिस इज 1 प्लस 10 और यहाँ पे 19 ना, 19 रेज टू 9 होगा, 19, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे 19 बचा, सॉरी 19 रेज टू 9 कॉमन निकाला था ना, तो 19 रेज टू 10 में से 19 रेज टू 9 कॉमन निकाला तो 19 बचेगा, 19 प्लस 10 विल बिकम 29। तो आंसर इज 29 इंटू 19 रेज टू 9 अपॉन 20 रेज टू 20, ऐसा ही आंसर छोड़ देना है, ठीक है। सो सिमिलर सम्स वी हैव गोइंग टू डू नाउ, सारे सम्स उसी फॉर्मेट पे, तो हमने 3 सम किया है, तो रेस्ट ऑफ देम यू कैन ट्राई। द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू डू is formula related with mean, variance and standard deviation। मीन का 2 सिंबल है, म्यू या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन। मीन का फॉर्मूला आता है एनपी, वेरियंस का फॉर्मूला आता है एनपीक्यू, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस होता है। तो हम लोगों ने 3 फॉर्मूला भी डिस्कस किया, मीन को ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, फॉर्मूला इज n इंटू पी, एन यानी बर्नौलीज ट्रायल्स, p यानी सक्सेस। फिर वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला आता है एन पी क्यू, ठीक है, एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है ना दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। ओके, सो दीज आर द 3 formulas। let us take a sum। सम्स काफी सिंपल है इसके, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, यू शुड नेवर लीव इट फॉर ऑप्शन। 12th का फर्स्ट, x बिलोंग्स टू बी एन पी, ये लिखने का तरीका भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। x सिग्निफाई जो ट्रायल हमको फाइंड आउट करना है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, p सक्सेस। ओके, n इज 10, तो इन माई फर्स्ट सम n का वैल्यू इज 10, p का वैल्यू इज 0.4, p का वैल्यू इज 0.4। माई फाइंड इज e ऑफ x, माई फाइंड इज e ऑफ x। तो e ऑफ x का फॉर्मूला क्या आता है, np यानी 10 इंटू 0.4, यानी आंसर कितना आएगा 4। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड वेरियंस ऑफ x। नाउ वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला आता है npq, n का वैल्यू 10, p का वैल्यू 0.4, और q कैसे ढूंढते हैं, q का फॉर्मूला, q इज अ फेलियर ना, q कैसे ढूंढते हैं, 1 माइनस p यानी 1 माइनस 0.4 यानी 0.6, 6 4 ज़ा 24, 2 नंबर पहले डेसिमल पॉइंट, 1 0 के कारण 2.4, ठीक है, दैट बिकम्स योर आंसर फॉर वेरियंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड सम में n का वैल्यू 25 दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 दिया है। My first find is to get p,
मेरे को पी ढूंढने का है, ठीक है. इट्स सिंपल. व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एन इंटू पी आता है ना. तो ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 25 है, तो p मिल गया. तो व्हाट इज p इक्वल टू 10/25. 5 से डिवाइड करेंगे तो 2/5. p मिल गया. तो q भी मिल जाएगा. व्हाट इज q इक्वल टू 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 2/5. 1 माइनस 2/5 विल बिकम 3/5. ओके. अब उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस. square root of variance, that is square root of NPQ, that is square root of n का वैल्यू 25, p का वैल्यू 2/5, q का वैल्यू 3/5. okay, 5 5s are 25. What is your answer? Square root of 6. Okay, so this is the last type of sums.